جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ سلسلے میں شامل کریں گے پہلے درود پاک کی فضیلت اور پھر آپ کے سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، اور کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جی سوال یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جو بچوں کی ہم مونٹیسری میں ایکٹیویٹی بک بناتے ہیں نا، میں اس کا بزنس کرتا ہوں، تو اس میں جو ہم مطلب تصویروں وغیرہ کوئی چیز بناتے ہیں، تو کیا اس کی کمائی حلال ہے؟ ٹھیک ہے جی، ایکٹیویٹی بکس کا بزنس ہے آپ کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خود کیا کرتے ہیں؟ ایڈیٹنگ کرتے ہیں؟ یہ بزنس ہے ان کا، تو کاروبار آنر ہیں۔ اچھا جی، جو سمجھ میں آ رہا ہے کال سے، انہوں نے کہا ہم بزنس کرتے ہیں۔ دیکھیے، بچوں کی ایکٹیویٹی بک جو ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہوں گی۔ کوئی پاکستان کا نقشہ ہوگا، کوئی درختوں کی معلومات ہوں گی، کوئی جانوروں کی معلومات ہوں گی، مختلف چیزیں ہوں گی، اور اس میں تصویر بھی ہوگی۔ اگر تو کوئی دکاندار ہے تو ایسی کتاب کا بیچنا تو جائز ہے، جس میں کوئی خلاف شرع تصویر نہ ہو جب تک کہ، تو ایسی کتاب تو بیچی جا سکتی ہے۔ البتہ جو بنانے والے ہیں وہ بہرحال ان کے لیے حکم اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جو تصویر کا بنانا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے دارالمدینہ ہے، یہاں کے بھی بکیں ہیں، یہاں کے بھی کتابیں ہیں، تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو چہرہ ہے اس کو بلر کر دیا جاتا ہے، چہرے کو مسخ کر دیا جاتا ہے، تاکہ جو تصویر کا حکم ہے وہ برقرار نہ رہے، اور تصاویر اس کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ ٹھیک، یہ بنانے والے کے لیے حکم ہے، جی جو بیچنے والا ہے اس کے لیے وہ کتاب بیچنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب نے تو اس کا شرعی جواب دیا، جائز ناجائز کا ارشاد فرمایا۔ آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو میرا ایک مشورہ ہے کہ دارالمدینہ کی جو نصابی کتب ہیں وہ چیک کر لی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ممکن ہو، شاید آپ کے لیے فائدہ مند ہو کہ دارالمدینہ کا جو ہمارا ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے، جو بکس ڈیولپ کرتا ہے اور بناتا ہے، اس سے اگر مل لیا جائے تو شاید اچھی رہنمائی ہو جائے گی، اس اعتبار سے کہ بعض اوقات جب شرعی مسئلہ پتہ چلتا ہے تو کام کرنے والا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز چھوڑوں گا تو میرے لیے مشکل ہوگا، حالانکہ اس کے لیے یعنی دنیاوی اعتبار سے دوسرے راستے موجود ہوتے ہیں جس کو شریعت نہیں روک رہی ہوتی، یا اس کے متبادل چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کو اچھی گائیڈ لائن آپ کے کاروبار کے اعتبار سے ہو سکتا ہے مل جائے۔ اگلی کال دیجیے۔ ایک میرا دوست ہے، وہ کنسٹرکشن کا ٹھیکیدار ہے، تو وہ اس نے لائبلٹی اپنی نکالی ہے کہ یار مجھے ایک کام میں سے کوئی 30% بچتا ہے، تو وہ کرا کے ٹیکس ادا کر کے جو بقایا رقم بچتی ہے نا، تو کہتا ہے یار وہ میرے ساتھ اگر کوئی انویسٹر مل جائے نا تو میں 50 خود رکھ لوں گا، 50 اس کو دے دوں گا۔ کیا یہ میرے ایک ریلیٹیو نے میرے تھرو اس کے ساتھ کام کیا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں اس طرح کام کرنا؟ اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بالکل، پراپرٹی کے کام کے اندر بھی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کچھ پیسے اس کے ہوں گے، کچھ پیسے آپ کے ہوں گے، اور اس سے جو ہے وہ کوئی جگہ بنائی جائے گی، یا کسی پلاٹ کے اوپر جو ہے وہ عمارت بنائی جائے گی، اور یہ عمارت بنا کر بیچی جائے گی، تو اس کے اندر انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ اب اس کے اندر پہلی چیز تو یہ ہے کہ دونوں کا کیپٹل واضح ہو، کہ اس کا اتنا کیپٹل ہے، اس کا اتنا کیپٹل ہے، دونوں کا کیپٹل واضح ہو، اس کا تناسب نکل آئے کہ ابھی 60% کیپٹل ایک کا ہے، 40 ایک کا ہے، پھر یہ نفع کی طرف آئیں کہ جناب نفع جو ہے وہ دونوں اس حساب سے تقسیم کریں گے، نفع فگر میں نہ ہو، وہ بھی تناسب کے اندر ہو، فیصد کے اندر ہو۔ اسی طریقے سے یہ بھی ممکن ہے کہ پیسہ ایک ہی کا ہے، کام دوسرے کا ہے، جو
वर्कर है, जो ठेकेदार काम कर रहा है, वो सिर्फ काम करेगा, पैसा इन्वेस्टर का होगा, ये भी ठीक है। अच्छा, ये भी दुरुस्त है कि पैसा दोनों का है लेकिन काम एक कर रहा है। जैसे जो अमली फील्ड में ठेकेदार है वो काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा, ये भी ठीक है। नफ़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो बुनियादी तौर पर ये शराकत है। शराकत के जो उसूल और ज़ाब्ते हैं वो यहाँ अप्लाई होते हैं। इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाई है, प्रोडक्ट बनाकर ये बेचेंगे, तो यूँ तिजारत करेंगे, तो ये शराकत है। ठीक, अगली कॉल दीजिए जी। एक प्लॉट है खाली पड़ा हुआ है, उनके रिश्तेदारों का है, वो कहते हैं कि हमने उन्हें पैसे दिए हुए हैं, वो प्लॉट उसको इंतकाल नहीं दे रहे, वो प्लॉट आगे बेचना चाहते हैं, क्या वो खरीदना जायज है या जायज नहीं? असल मालिक को उन्होंने पैसे दिए हुए हैं, असल मालिक उन्हें इंतकाल नहीं, तो वो आगे खरीदा जा सकता है या नहीं? देखिए, मसला ये है कि खरीदो फरोख्त के जो शराइत हैं और जो ज़रूरी अहकाम हैं उसमें से एक चीज़ है कुदरत अल तस्लीम का होना। यानी जो चीज़ खरीदी जा रही है वो काबिल सुपुर्दगी रखती हो, यह ना हो कि उसका हवाले करना ही मुमकिन ना हो। बाज़ औक़ात कब्ज़े की जगह होती हैं, तो कब्ज़े की जो जगह होती हैं उन्हें बेच भी दिया जाता है लेकिन कब्ज़ा बरकरार रहता है। तो जो चीज़ ख़रीद रहा है उसका ये हक़ है कि वो चीज़ को रिसीव करे, अपना कब्ज़ा करे। अगर वो ऐसी कैफियत पर है कि उसका कब्ज़ा मुमकिन नहीं है तो उसकी ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ नहीं होगी। अब मसला यहाँ पर यह है कि अव्वल तो ये वाज़ेह नहीं है कि जिनसे आप ख़रीद रहे हैं उनको ये कब्ज़ा नहीं मिला तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो साबका लेन देन है वो भी मुमकिन है क्लियर ना हुआ हो। जब ऐसी सूरत हाल होती है कि कोई कब्ज़ा नहीं दे रहा होता तो सारी पेमेंट भी उसे नहीं दी जाती। फिर एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा कि आपने तो ख़रीद लिया है, किससे पूछ कर ख़रीदा है, इन्होंने तो मेरे पैसे नहीं दिए हैं। तो अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ली जाए और फिर उसके बाद दोबारा पूछ लिया जाए। तो इसमें इनके सवाल से हटकर एक कंडीशन ये भी होती है कि बाज़ औक़ात कोई जगह, प्लाट, दुकान, मकान वगैरह ख़रीदा है लेकिन उसका अब कब्ज़ा नहीं मिल रहा। यानी यूँ समझ लीजिए इसमें मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये अर्ज़ कर रहा हूँ मैं आपसे कि पेमेंट कर दी, अब उस होना ये चाहिए था कि जिसने पेमेंट ली है वो उस दुकान, मकान या प्लाट के कागजात भी इस पार्टी के नाम करे जिसने पेमेंट की है और कब्ज़ा भी दे। लेकिन वो किसी भी वजह से, और बाज़ औक़ात जो होता है वो बददियानती होती है, वो कब्ज़ा भी नहीं दे रहा होता, इनके नाम पे भी नहीं कर रहा होता। और कराची में सूरत हाल तो आंखों देखी है। अब होता ये कि पार्टी जब थक जाती है कि भाई ये तो हमारे नाम भी नहीं कर रहा और कब्ज़ा भी नहीं दे रहा, तो वो मार्केट में शो करती है कि भाई ये प्लाट है या ये मकान, ये दुकान है और ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो ख़रीद ले। उमूमी तौर पे ये अच्छे रेटों पे नहीं बिकती, कम रेटों पे बिकती है ऐसी जगह। सामने वाले तगड़े लोग होते हैं जी, वो कब्ज़ा लेना जानते हैं, वो कब्जा लेना भी जानते हैं, नाम करवाना भी जानते हैं, तो ऐसा हो जाता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि कब्जा भी पास होता है लेकिन कोई पेचीदगी कानूनी तौर पर आ जाती है। कानूनी तौर पर इन मामलों के बुनियादी तौर पे तो जिसने खरीदा है उसके नाम भी हो गया, फाइल भी उसके नाम आ गई है, उसका कब्जा भी हो गया है, उसने रिहाइश या कारोबार भी वहाँ पे शुरू कर दिया है, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन ऐसा होता है। बाज़ औक़ात कोई एक जिनकी वो प्रॉपर्टी थी जी, उनमें से कोई एक जाकर खड़ा होता है कि तो विरासत की प्रॉपर्टी थी, जी जी जी, कोर्ट पे खड़ा हो जाता है, केस चलता रहता है। तो देखिए, ये सारी जो बातें हैं ये वाज़ेह कर रही हैं कि ये तनाज़ा इन दो फरीक़ैन के दरमियान है, ठीक है, तीसरे को दरमियान में नहीं आना चाहिए। सही, तीसरा दरमियान में आ रहा है वो प्रॉपर्टी खरीद कर। सही, अब वो जब वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसका सुपुर्द, मतलब उसका कब्जा लेना, उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करना जी, खरीदारी के वक्त मुमकिन नहीं है। सही, तो खरीदारी के वक्त जब मुमकिन नहीं है तो यहाँ वो शर्त नहीं पाई गई जिसका पाया जाना जरूरी था, ठीक, कुदरत अल तस्लीम का होना। सही, ऐसी प्रॉपर्टी में हाथ ना डाला जाए। ठीक है, अगली कॉल दीजिए जी। मुमताज अख्तर अत्तारी बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की खिदमत में सवाल है कि जैद एक अदारे के अस्पताल में काम कर रहा है, उस अस्पताल में बतौर डॉक्टर काम कर रहा है, उस अस्पताल में प्राइवेट प्रैक्टिस अस्पताल की तरफ से ये है कि आपने प्राइवेट प्रैक्टिस अस्पताल के अंदर ही करनी है। कुछ अस्पतालों में प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाजत होती है। अब आया जैद क्या अस्पताल के अलावा अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस अस्पताल के बाहर कर सकता है कि नहीं? शरीर रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैर। ठीक है जी। देखिए, मामला ये है कि ऐसे तो शर्त नहीं लगानी चाहिए कि आप कहीं और प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये शर्त लगाना मायदे के ख़िलाफ़ है। और अगर कोई डॉक्टर एक सर्विस करता है, एक ड्यूटी अंजाम देता है और ड्यूटी अंजाम देने के बाद कहीं और सर्विस करना चाहता है तो उसको इस बात की इजाज़त है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर गवर्नमेंट डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है,
تو سرکاری اداروں کی طرف سے اس طرح کی پابندیاں ہوتی ہیں اور اس سمجھ میں بھی آتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سرکاری اسپتال کے اندر علاج مفت ہوتا ہے. جی. اب وہ مریضوں کو جناب ریفر کر رہے ہوتے ہیں اپنے پرائیویٹ کلینک کی طرف. جی. اپنے پرائیویٹ کلینک کی طرف منتقل کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پھر مہنگے ٹیسٹ کرواتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا یہ بھی ہوا ایک مرتبہ میرا بھی مشاہدہ ہوا تھا کہ ایک جو ڈاکٹر ہے وہ ایک کلینک میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کی فیس بھی تھوڑی کم ہے. جی. وہ رفاہی قسم کا اسپتال ہے, ٹھیک ہے. نو پروفٹ نو لاس پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہاں بیٹھنے کے باوجود وہ لوگوں کو اپنے پرائیویٹ کلینک پر آنے کا کہتا ہے. ٹھیک ہے, ریفر کر رہا ہے. تو یہ اس کی بد دیانتی ہے کہ جب ایک مریض نے پیسے ادا کیے ہیں, پیسے ادا کرنے کے بعد وہ یہاں آ گیا. جی. اب وہاں جا کر کیا سرخاب کے پر لگ جائیں گے ڈاکٹر کو کہ وہ یہاں وہ کام نہیں کر سکتا, اپنے پرائیویٹ کلینک میں کرے گا. جی. تو اس کا کام ہے مشورہ دینا, دوائی کا مشورہ دینا, دوائی لکھ کر دینا, ٹیسٹ لکھ کر دینا, اس پر اپنی رائے لکھ کر دینا. یہ سارے کام تو یہاں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اب ڈاکٹر اگر غلط کرتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے. ٹھیک. اس کے اس کردار کو, اس کے اس افعال کو, اس رویے کو ایک منفی رویہ اور ایک قابل مطلب ایک جرم پر مشتمل رویہ کہا جائے گا. قابل مذمت ہے. ایک اخلاقی جرم ہے یہ. ٹھیک. لیکن ہاسپٹل والوں سے باؤنڈ تو نہیں کر سکتے کہ ہمارے اسپتال کے علاوہ آپ نے کام نہیں کرنا. اگر پرائیویٹ اسپتال ہے وہ تو باؤنڈ نہیں کر سکتا. گورنمنٹ اسپتال والے باؤنڈ کرتے ہیں, اس کی ایک وجہ ہوتی ہوگی کہ ڈاکٹروں کی شفٹیں لگتی ہیں کہ ایمرجنسی آ گئی, کسی وقت بھی کال کیا جا سکتا ہے, کسی کو بلایا جا سکتا ہے, پھر شفٹیں بدلتی رہتی ہیں. تو اس طرح وہ نہیں چاہتے کہ جناب یہ ملازم کہیں اور کام کرے. جب وہ کہیں اور کام نہیں کرے گا تبھی ڈیوٹی کر پائے گا. تو وہاں یہ شرط تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن پرائیویٹ اداروں کے اندر ایسی کچھ چیزیں نہیں ہوتی, تو ان کو رعایت دینی چاہیے. ہاں پرائیویٹ ادارے بھی اگر ابتدا میں معاہدہ کر لیں گے آپ کی شفٹ چونکہ بدلتی ہے, صحیح, اس وجہ سے آپ کہیں اور کام نہ کریں, ہمیں آپ اپنے شفٹ پر چاہیے, ٹھیک, تو شفٹ پر وہ چلا جائے. صحیح. مفتی اگر کہیں ایسی کنڈیشن ہو جو آپ نے صورتحال بیان کی ہے, اس کے علاوہ کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے یا کسی چھوٹے ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے اور وہاں پہ علاج وغیرہ تو ویسا ہی ہوگا, یقینی طور پہ جو ڈاکٹر یہاں پر ہے وہی ڈاکٹر وہاں پر ہوگا, لیکن سہولیات کی جو ہے وہ فرق ہوتا ہے, بہتر اور کم بہتر کا معاملہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی پیشنٹ پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کوئی اچھا ہاسپٹل بتا دیں, اچھا کلینک بتا دیں یا اچھا ڈاکٹر بتا دیں, اب چاہے وہ ڈاکٹر گورنمنٹ ہاسپٹل کا ہو چاہے پرائیویٹ ہاسپٹل کا ہو, تو وہ اب پیشنٹ کو بتائے گا یا نہیں؟ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ڈاکٹر سے ایسا سوال کرنا نہیں چاہیے. ہمارا ڈاکٹر جو ہے نا وہ کمیشن پہ چل رہا ہوتا ہے. ہاسپٹلز میں جو ہوتے ہیں بالکل کمیشن پہ چل رہا ہوتا ہے. کچھ ڈاکٹر ہوں گے جو دیانتدارانہ مشورہ دیں گے, ٹھیک ہے, باقی اپنے کمیشن کو دیکھ کے مشورہ دیں گے. جو لیبارٹری کمیشن دیتی ہے, جو ادارے کمیشن دیتے ہیں, وہ اس کا نام سجیسٹ کریں گے, یہ بڑا اچھا ہے. ٹھیک, حالانکہ اس سے اچھے اور بھی ہوں گے, اس سے سستے اور بھی ہوں گے. جی, جہاں سے کمیشن ملتی ہے وہ وہیں کا نام دے گا. صحیح, کر دیجیے. میرا الیکٹرانکس کا کاروبار ہے, الیکٹرانکس کا, اور ہم 1 سال کے ادھار پر سامان دیتے ہیں. ہر شہر میں 2 مہینے لگاتے ہیں. 2 مہینے مطلب کسی اور شہر میں, 2 مہینے کسی اور شہر میں. پھر جس دکاندار سے ہم سامان اٹھاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ 2 مہینے میں اگر بک گئی تو بک گئی, جو نہیں بکی وہ آپ کو واپس لا کر دیں گے. کیا یہ جائز ہے؟ خان صاحب دیکھیں, آپ کا جو کاروبار ہے یہ بہت پھیلا ہوا ہے, یعنی آپ جیسے اور بہت سارے لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں. اب آپ نے تو 2-3 جملوں میں سوال پوچھ لیا, لیکن میں جب اس مسئلے پر غور کرتا ہوں تو مجھے اس سوال کے پیچھے ایک پورا جہان نظر آتا ہے. یعنی آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں, ایک کا تعلق ہے آپ کے کسٹمر کے ساتھ اور دوسرے کا تعلق ہے جس سے آپ مال خرید رہے ہیں اس کے ساتھ, اور آپ نے دونوں کا سوال کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو آپ کی شرائط ہیں کسٹمر کے ساتھ جو شرائط ہیں, ان شرائط کے حوالے سے بہت ساری جو ہے نا خامیاں پائی جاتی ہیں ادھار مال بیچنے میں. ادھار مال بیچنا تو جائز ہے, لیکن پھر اگر کوئی پلنٹی لگانا شروع کر دے کہ جی آپ کی قسط لیٹ ہو گئی ہے, آپ اتنے زیادہ پیسے دو, یہ ناجائز ہے. اسی طریقے سے آپ نے دکاندار کے حوالے سے پوچھا کہ اس کو ہم واپس کرنے کی شرط لگاتے ہیں کہ آپ کو واپس کر دیں گے. اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, اس طریقہ کار کو اختیار کیا جائے تو واپس کیا بھی جا سکتا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ کا کاروبار ہے, پوری زندگی آپ کی اس میں گزرے گی اور آپ یہ کام صبح شام دن رات روزانہ ہی کرتے ہیں, بہتر یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت میں آ کر
जो भी आपके करीबी दारुल पड़ता है, वहाँ आकर आप इसकी मालूमात लें, थोड़ी सी तफसील और बयान करें और बैठकर मसले को समझें। एक दफ़ा मसला समझ लेंगे तो काफ़ी आसानी रहेगी, उसके बाद आप उस पर अमल करते रहें। मतलब पिछले सवाल के जवाब में जब आपने इरशाद फरमाया कि डॉक्टर से ना पूछें, तो बिल्कुल इतना अचानक था कि वो मेरी कैफियत ऐसी थी कि मैं सवाल आपसे नहीं कर पाया, लेकिन एक सवाल बनता है और वाकई में मतलब आपकी जो तवज्जो गई ना उस पर मैं बड़ा हैरान रह गया एकदम से कि इस तरफ तो वाकई में मैं ये समझ रहा था कि आप कहेंगे हाँ पूछना चाहिए और बताना चाहिए, लेकिन उसके हटकर वैसे आया। ये भी अच्छा हुआ कि जो आपके जहन में था वो आपने मेरे लब पे नहीं डाला। बाद मेजबानों की आदत होती है तो एक सवाल पूछते हैं, अच्छा जवाब अगर उनके जहन में जो कुछ है उसके बरखिलाफ आए ना, फिर भी वो अपने जवाब में उलझे रहते हैं। चलें आगे चलें। नहीं बिल्कुल, आप असल में जब आप जवाब इरशाद फरमा रहे थे तो मेरे जहन में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स थी जो इस हवाले से आई हैं, और ये एक हकीकत है मदनी चैनल के नाज़रीन आपके लिए, शायद आप में से बहुत सारों के इल्म में ये नई बात आए कि भाई ऐसा भी होता है। तो वाकई में ऐसा होता है कि पेशेंट्स बिकते हैं, कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की तरफ जब पेशेंट्स जाते हैं तो उसमें कमीशन होता है और जो है उनकी आमदनी के जराए होते हैं। अब इस मामले में कोई एतदाल की सूरत हो जाए, क्योंकि पूछना तो पड़ता है। अच्छा बाज़ औक़ात वो रेफर कर रहे होते हैं और पेशेंट को पता होता है कि ये देखिए, एक पूछना होता है मालूमात के लिए। मिसाल के तौर पर किसी का दिल का प्रॉब्लम है, किसी का जिगर का प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर से पूछे तो सही जी, लेकिन वो इसलिए पूछे कि अच्छे डॉक्टर कहाँ बैठ रहे हैं, ठीक, तो बाहर आके भी लोगों से पूछे, कुछ और लोगों से पूछे, फिर खुद फैसला करे। सही, डॉक्टर की राय पर इन माना में यहाँ एतमाद करेगा तो नुकसान उठा सकता है कि वो वहीं भेज रहा होगा जहाँ से उसको कमीशन मिल रहा होगा। हो सकता है अच्छा डॉक्टर कहीं और बैठ रहा हो, सस्ता इलाज इससे कहीं और बेहतर मुमकिन हो, तो ये सूरत होती है। मतलब मुझसे इसी तरीके से अभी मुझे खुद पर्सनली मुझे तजर्बा हुआ कि एक हॉस्पिटल में गया, कराची के बहुत बड़े नामी गिरामी हॉस्पिटल में गया, वहाँ से दवाएं लिखी गई और फिर मैं पूरे कराची में ढूंढता रहा, यानी अपने इलाकों में अतराफ में ढूंढता रहा। फिर मैं दोबारा हॉस्पिटल गया, डॉक्टर साहब से मिला और उन्हें मैंने अर्ज़ की कि भाई ये दवाएं कहीं नहीं मिल रही हैं, आप इसका सब्स्टिट्यूट लिख दें। अच्छा इत्तेफाक ऐसा था कि हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ जो मेडिकल था मैंने उसे प्रीफेयर ही नहीं किया, टच ही नहीं किया और वहाँ पे मैंने दवाएं नहीं देखी। तो डॉक्टर साहब ने मुझे सराहत की कि भाई ये दवाएं जो है ना आपको इस मेडिकल पे मिल जाएंगी और यहीं से आप ले लें। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं कि जो मेरे साथ कंडीशन थी वो ये थी कि वो हॉस्पिटल एक ख़ास बीमारी के ताल्लुक से था, तो उसकी सारी मेडिसिन मुझे जो समझ में आया वो उधर मेडिकल पे होंगी। लेकिन इसमें ये भी होता है कि मेडिकल स्टोर्स जो होते हैं कुर्ब जवार में, क्लिनिक के, हॉस्पिटल के, वहाँ पे वो दवाएं रखवाई जाती हैं कि कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, ज़्यादा कमीशन मिलेगा। तो ऐसी सूरत हाल में असल में होता ये है कि मेडिकल कंपनियां डॉक्टर को जो पैसे देती हैं रिश्वत में कि आपको हम सिंगापुर लेकर जाएंगे, आपको फ्रिज मिलेगा, एसी मिलेगा, कार मिलेगी, फलां मिलेगी, तो अब वो कैसे आइडिया लगाएं कि इस डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिखी भी कि नहीं लिखी जी, तो वो ये बाउंड करती हैं कि ये 2-4 मेडिकल स्टोर हैं, इससे बाहर आपने नहीं भेजना। ठीक, और फिर वो देखते हैं कि इन मेडिकल स्टोर पर उन दवाओं की कितनी खपत आई, सही, कितनी दवाएं खरीदी गई, और उससे फिर वो रिपोर्ट निकालकर तजिया करती हैं कि डॉक्टर ने अपना अदब पूरा कर दिया और ये उस रिश्वत का मुस्तहिक है या नहीं है। रिश्वत का लफ्ज़ मैं यूँ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि शरीयत बार से तो रिश्वत है। ठीक है। डॉक्टर ने जो फीस ली है मरीज से, वो फीस तो ली है अपना मशवरा देने की, जी, अपनी सर्विस फराम करने की, बैकग्राउंड में वो कोई और मुआवजा कैसे ले सकता है? ठीक है, तो दयानत का मुजाहरा करने का पाबंद है सही, कि मुनासिब दवा लिखे, सस्ती दवा लिखे, जितनी मिकदार रिक्वायर्ड है उतनी लिखे, लेकिन पस पुस्त अपने नफ़े के लालच में, अपने मफादात के लिए पूरा टोकरा भर के लिख देता है जी, और ज़्यादा मिकदार लिख देता है, ज़्यादा महंगी लिख देता है, हालांकि कम महंगी भी मैसर होती है। तो ये वजह होती है। ठीक है। मुझसे ये डॉक्टर की तरफ से हो गया, जो मेडिकल वाला इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, जाहिर सी बात उस मेडिकल पे वो दवाएं रखवाई जा रही है। बाज़ औक़ात कंपनीज जो हैं वो मेडिकल वालों को एक टारगेट देती हैं कि अगर आप इतनी दवाएं या इतनी इसकी बोतलें या इतनी टैबलेट्स के डब्बे बेच देंगे तो आपको इस तरीके से कमीशन मिलेगा या तहाइफ मिलेगा। तो उसके लिए क्या हुक्म होगा? वो बेचता उसी पे है, डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन पे। देखिए, मेडिकल वाला उसका ताल्लुक नुस्खा तजवीज़ करने से नहीं है। जी, ग्राहक उसके पास आएगा, उसने दवा बेचनी है। जी, बिल्कुल जैसा ऐसे एक करियाने की दुकान है, इसी तरह एक मेडिकल बिल्कुल स्टोर ऐसे है। ही। तो इसकी सेल पर अगर कोई प्रमोशन मिलती है तो ये एक जुदा गाना मामला है, ठीक है, तो तजारत पर मामला है। ठीक, इसकी इजाजत होगी। जी। ठीक, अगली कॉल दीजिए जी।
साथ का सवाल ये है कि एक प्लम्बर से बात ये हुई कि गर्म और ठंडा पानी हर जगह एक जैसा चाहिए, कहीं गर्म और कहीं ठंडा ऐसा ना हो। तो उसने कहा कि काम हो जाएगा, 5,000 रुपये लगेंगे, 3,500 रुपये सामान के और 1,500 रुपये मजदूरी के। मैंने कहा ठीक है। उसने काम किया और मैंने 1,500 रुपये मजदूरी दी और सामान के 2,500 रुपये दिए। जब गीजर चलाकर चेक किया तो कहीं ज्यादा गर्म और कहीं ठंडा आ रहा था। उसको बताया तो उसने कहा ये मजीद सामान आएगा और फिर ठीक हो जाएगा। वो सामान मंगवाया और उसके पैसे 2,000 रुपये का बिल बना सिर्फ सामान का, और पैसे ना दिए। जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी टैंकी जो है वो नीचे, लिहाजा ये मसला रहेगा कि कहीं गर्म ठंडा ऐसा रहेगा। अब मुफ्ती साहब सवाल ये कि अगर वो कारीगर पहले बता देता कि आपकी टैंकी नीचे है, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं, तो हम उससे काम ही ना करवाते। लेकिन उसने ना बताया, जबकि वो कारीगर भी है। तो क्या ऐसी सूरत में उस सामान और मजदूरी के पैसों का हकदार है, जबकि कुछ जगह लीकेज भी बाकी है? आपका जवाब तो मुफ्ती साहब देंगे, लेकिन बड़ा एक प्यारा मिसरा है कि अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। जी मुफ्ती साहब। असल में देखें, बाज़ ये काम ऐसा है ना जी कि जब तक फील्ड में ना उतरे कारीगर को भी अंदाज़ा नहीं होता। जी एक चीज़ होती है कि भी लगा कर देखी जाएगी और फिर जो ना वो अंदाज़ा होगा। बैकवर्ड घर पे काम चल रहा था तो मैंने एक टूटी खरीदी। जी मैं इस तलाश में था कि ऐसी टूटी खरीदूं जो थोड़ी ऊंची हो, ठीक है, बेसन पर वुज़ू करते हुए ज़्यादा झुकना ना पड़े। ठीक तो उसने कहा कि जी अगर ये प्रेशर हुआ तो ये पानी अच्छा आएगा, वरना अच्छा नहीं आएगा, ठीक। आप ला के चेक कर लें। मैंने चेक कर ली तो ठीक था, वो वापस करने की जरूरत नहीं पड़ी। सही। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फील्ड में, जब कोई काम करेगा तो उसको आइडिया होगा। ठीक है, और ये 5-7 हज़ार रुपये इतने ज़्यादा नहीं है ठीक कि ये ज़ाया हो गए। यानी उसकी जो मजदूरी है वो इतनी बनती है, तकरीबन कम से कम 3-4 दिन उसने काम किया होगा। तो इससे पहले वो राय कैसे दे सकता था? ठीक। उसकी तो खुद समझ में नहीं आती कि जब टंकी की वजह से प्रॉब्लम है या किसी वजह से प्रॉब्लम है, और शायद इनको कुछ और भी करना पड़े पानी जो है ना ठंडा और गर्म लेने के लिए। अब मैं भी कुछ अर्ज करूँ इस तजर्बे की रोशनी में। टेक्निकली बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ तजर्बा है। तो ये ठंडा गर्म का जो होता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान वगैरह में जिस अंदाज से गीजर यूज होते हैं कि पूरे घर में एक गीजर होता है, टंकी के साथ लगा हुआ होता है, और फिर उसी की लाइन जो है वो हर वॉशरूम में, हर बाथरूम में और किचन में और जहाँ जहाँ पानी की जरूरत है वहाँ जा रही होती है। तो मामला ये होता है कि जिसका जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो उसमें उतनी ताखीर से गर्म पानी पहुंचता है। जो गीजर के जितना करीब नल वगैरह होगा उसमें उतने जल्दी आएगा। और जितना सर ये बात तो इनके पेश नज़र भी होगी, कोई इतनी मोटी बात नहीं है। जो टेक्निकल चीज़ है वो ये क्या चाह रहे हैं, एक तो वाज़ेह नहीं हो रही, और वो कहते हैं कि अदीन नसीहा, ठीक, तो खैर खाई का नाम है। तो इसके तहत एक मशवरा हम अर्ज कर देते हैं कि आजकल तो ये गीज़र जो है वो इनका इस्तेमाल कम होता जा रहा है। उसकी वजह एक तो ये है कि पानी बहुत लेट पहुंचता है। पानी ज़ाया करें तो फिर जाके जो है ना वो गर्म पानी आएगा, ठंडा पहले बहाना पड़ेगा। आजकल जो छोटे गीज़र आए हैं जो 1 यूनिट पर होते हैं, एक गुस्साखाने में लग जाएगा, एक किचन में लग जाएगा, टोटी खुलेगी गर्म पानी आ जाएगा। जी। तो इस तरह के जो गीज़र हैं वो ज़्यादा कामयाब हैं, खर्च भी कम है, पानी भी ज़ाया नहीं होता। और बाहर की दुनिया में तो ज्यादातर यही है। अब पाकिस्तान में नए इस्तेमाल हो रहे हैं, नई इमारतें बन रही हैं। अच्छा, मुमकिन है इसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी भी है, क्योंकि हमने हरम शरीफ में कभी नहीं देखा कि पानी जो है अपने एतदाल से हटकर हो। ठीक है। यानी हरम शरीफ की टूटियों में, वुज़ू खाने में कितना इस्तेमाल है। सही। पानी अपने एतदाल से हटकर कभी भी नहीं आता। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडा आ गया या बहुत ज़्यादा गर्म आ गया, एक बिल्कुल उस पर आएगा। ठीक है, परफेक्शन पे है। जी हाँ, इसका लगता है कोई और सिस्टम लगता होगा बड़ा। तो वहाँ के होटलों में भी यही है कि जैसा मौसम है उसके हिसाब से गर्म पानी आएगा, कम और ज़्यादा कभी भी नहीं देखा। ठीक है जी, आपके सवाल से नई जहतें खुली हैं। कुछ हम भी गौर करते हैं, कुछ आप भी गौर करें, मदनी चैनल के नाज़रीन भी गौर करें। लेकिन जितने पैसे ये बता रहे हैं, कारीगर ने काम किया है, उस काम करने में इतने पैसे लगते हैं आमतौर पर। ठीक। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि कारीगर ने ज्यादती की नहीं होती, हम खुद अपने तय ये समझ रहे होते हैं इसने हमारे साथ ज्यादती कर दी है। तो इस पे भी गौर कर लिया करें कि हर वक्त जो है कारीगरी ज्यादती नहीं कर रहे होते। कभी कभी हम भी जो है वो दिल में मुख्तलिफ किस्म के गुमान लाके शायद अपने साथ ज्यादती कर रहे होते हैं। अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद हुरम अतारी, उमान मस्कत से। मुफ्ती साहब, मैं ब्रोकर का काम करता हूँ, तो काम वगैरह भी लेके देता हूँ जी। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन को काम लेके दिया, तो एक दफा तो उसने मुझे कमीशन दे दी है जो लेके दिया है, तो वो ही पार्टी अभी दूसरी दफा फिर दूसरी जगह पे उसको काम पे बुलाएगी, तो उसको काम फिर देगी वो। तो क्या मैं दूसरी दफा भी उससे कमीशन मांग सकता हूँ? ये दूसरी दफा भी उसको, मैंने ही पहली दफा उस पार्टी से मिलाया उसको, तो इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें। या पहली दफा उससे डील की जाए ऐसी, क्या कितनी दफा भी ये पार्टी आपको काम देगी मुझे उतनी दफा
کام لہذا کمیشن دینی ہے آپ نے؟ دیکھیے مارکیٹ میں اور مختلف شعبوں کے اندر تو بڑے عجیب و غریب نظام رائج ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے آپ نے جو پہلی مرتبہ کوشش کی ہے اس میں محنت کی آپ نے، اس محنت کے بدلے جو ہے آپ کو معاوضہ دے دیا گیا، لیکن دوسری مرتبہ میں تو آپ کی کوئی محنت پائی نہیں گئی۔ اب وہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ ہے، اس کو پتہ چل گیا یہ جناب کام کرنے والا ہے، اب وہ اس کو خود فون کر کے بلا لیتا ہے، جی کام ہے آپ آ جاؤ۔ تو اب اگلی مرتبہ میں تو اس کی کوئی محنت ہوئی نہیں جی، تو آپ کا جو کردار ہے وہ ختم ہو گیا، آپ کی محنت، آپ کی کوشش اب وہ پائی نہیں گئی۔ تو جو پہلی مرتبہ اجرت لینے کے تو آپ مستحق ہیں، بروکری لینے کے آپ مستحق ہیں، لیکن اگلی مرتبہ میں جب وہ دونوں ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں آپ کا کردار ختم۔ سر اس میں جو بڑی کمپنیز اب بنتی جا رہی ہیں، پاکستان میں بھی بن رہی ہیں، بیرون ملک تو ہیں ہی، خدمات کے حوالے سے سروس پرووائڈرز جو ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے، تو وہاں پر ایک عمومی طور پہ اس کو بددیانتی تصور کیا جاتا ہے کہ اگر کسی فرد کو کمپنی نے بھیجا ہے نمائندہ بنا کر کہ بھئی آپ کام کر آؤ، ہم نے اتنے کا ٹھیکہ لیا اور اتنے پرسنٹ ہمارے ہوں گے باقی آپ کے ہوں گے، تو اگر یہ اپنا لنک بناتا ہے اسے بددیانتی تصور کرتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں بددیانتی ہوگی یا نہیں ہوگی جبکہ وہ کمپنی کا امپلائی نہیں ہے؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے جہتیں ہیں نا، ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ تو اپنا ایک نمائندہ مقرر کر دیتی ہیں جی، اور مستقل وہ نمائندہ کمپنی کے لیے اور کسٹمر کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، جیسے چائنا کی کوئی کمپنی ہے اور یہاں اس نے نمائندہ اور ایجنٹ مقرر کر دیا ہے، تو جب بھی کلائنٹ کوئی پرچیزنگ کرے گا اس کے ذریعے کرے گا، ٹھیک ہے، یہ انوالو ہوگا، یہ ڈاکومنٹ چیک کرے گا، یہ پیمنٹ کا لین دین کرنے کا ذمہ دار ہوگا، تو ہر مرتبہ سے سروس انجام دی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، جہاں وہ کلائنٹ سروس انجام نہیں دے رہا تو وہاں وہ اجرت کا مستحق نہیں ہے۔ ٹھیک، اب یہ بات الگ ہے کہ اپنی جو نا لائن بنانی چاہیے نہیں بنانی چاہیے، کاروباری طور پر تو مایوس سمجھا جاتا ہے اسے، جیسے ایسے خراب ہو گیا، جی، اب وہ ایسی تھا وارنٹی پر، کمپنی نے اپنا بندہ بھیج دیا، جی، اب یہ بندہ اپنا بھی کاٹ دے گیا کہ آئندہ جب ہو تو ذرا مجھے بلا لیجیے گا، آپ کمپنی میں تو آپ کو 10 دن لگتے ہیں، میں دوسرے دن آ جاؤں گا۔ جی، تو اس کا یہ کرنا جو اس کی ڈیوٹی کی ذمہ داری ہے اس کے تو برخلاف ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو بلاتا ہے اور کمپنی یہ کہے کہ ہمیں اجرت دو تو یہ اجرت تو اس کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، اسی کو ملے گی جس نے کام کیا ہے۔ اگلی کال دیجیے جی۔ لیکن یہ معاملہ کمپنی کا اس لیے معیوب تھا کہ وہ پرمنٹ ملازم تھا۔ جی، آزاد مارکیٹ کے اندر جس طرح یہ ہے جی، کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک پارٹی سے ملایا، الیکٹریشن سے ملایا، اس پتہ چل گیا آپ الیکٹریشن ہے، ٹھیک، آئندہ اس نے خود بلا لیا، تو یہاں کوئی بددیانتی بھی نہیں ہے، کوئی دیانتاً بھی کوئی معیوب بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اور تو ان کا جو سوال تھا اس کا جواب پھر یہی ہو گیا کہ ایک ہی دفعہ کمیشن لینے کے یہ حقدار ہوں گے جبکہ انہوں نے محنت کی، اور جب محنت کریں گے پھر جب حقدار ہوتے جائیں گے۔ اگلی کال دیجیے۔ سید عطار محمد ساجد عطار یس کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سلسلہ احکام تجارت جاری و ساری ہے۔ سلسلے کے اندر مفتی صاحب کی آمد مرحبا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص موبائل کے اندر گانے ڈالتا ہے تو کیا اس کا گانے ڈالنے والا اس کے جو پیسے لیتا ہے کیا اس کے پیسے لینا درست ہے؟ ساجد بھائی، ایک تو کئی دفعہ آپ نے پہلے بھی کال کی ہے، آپ کی محبت ہے، اپریسیشن بھی آپ دیتے ہیں، لیکن مفتی صاحب کو جس طریقے سے آپ مرحبا کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مفتی صاحب مہمان ہیں، لیکن یہ سلسلہ ہوتا ہی مفتی صاحب کی طرف سے، تو مفتی صاحب ہوں گے نہیں تو سلسلہ ہی نہیں ہوگا۔ تو آپ کی جو اپریسیشن ہے یا جو مرحبا کہنے کی کیفیت ہے اس کو تھوڑا آئندہ تبدیل کیجیے گا۔ جی مفتی صاحب، اتنا نہ کریں، بیچارے محبت سے کال کرتے ہیں۔ جی جی، میں نے بھی محبت سے عرض تو کیا۔ ایک مرتبہ فضائل عالت میں آیا ہوا تھا تو جی جی، نیپال بلا رہے تھے آپ۔ انہوں نے کہا نیپال آئیے، تو میں نے کہا کہ آج آپ نے پہلی دفعہ بتایا آپ نیپال کے ہیں، تو کہیں سے انہوں نے نمبر تلاش کیا ہوگا میرا جی، اور واٹس اپ کیا مجھے کہ میں تو ہند کا ہوں، جام نگر کا ہوں، اچھا، اور نیپال یوں بلا رہا تھا کہ نیپال میں آنا ممکن ہوتا ہے، ٹھیک، وہاں آنا جانا لگا۔ لیکن آ سکتے ہیں آسانی سے۔ تو خیر ان کی محبت ہے، کال کی انہوں نے، اور سلسلہ دیکھتے ہیں ٹائم نکال کر، یہ بڑی بات ہے۔ دیکھیے جو کام گناہ پر مشتمل ہو اس کا کرنا تو جائز نہیں ہوتا، تو فلمیں ڈالنا میموری کے اندر یا میموری کارڈ ایسا رکھنا اس میں فلمیں ہوں تو یہ گناہ پر معاونت ہے، یہ کام جائز نہیں ہے، اور اس کی جو اجرت ہے وہ بھی جائز نہیں ہوگی۔ چلیں جی، آپ کا جواب ہوا، اور مفتی اب جواب سے ایک بات مجھے یاد آئی کہ ہم ایک دفعہ احکام تجارت کے لیے موبائل مارکیٹ میں گئے تھے، تو اور یاد یوں آئی کہ امیر اہل سنت کی نئی کتاب آئی ہے
फैज़ान नमाज के नाम से। तो हम मोबाइल की मार्केट पे अहकाम तिजारत करने गए थे, वहाँ एक साहब मुझे मिले, इमाम वगैरह में थे। तो जब उनसे बातचीत हुई तो पता चला जी अभी तो कुछ ही दिन हुए माहौल में आए हुए, दावत इस्लामी से वाबस्ता हो। तो वजह ये बनी उनकी, वो भी यही अपलोडिंग करते थे इस नोयत की। तो उन्होंने कहा कि मैं रमज़ान शरीफ से तो इत्तेफाक से मदनी चैनल देख रहा था, उस पर गीबत की तबाहकारियों की मैंने तारीफ सुनी और मैंने बोला किताब ख़रीदनी चाहिए। मैं फैज़ान मदीना पहुँच गया, पहली दफ़ा गीबत की तबाहकारियाँ ख़रीदी और फिर वो पढ़ी और दावत इस्लामी के करीब आया। ये काम भी छोड़ दिया, काम चेंज कर लिया उन्होंने माशाअल्लाह। तो देखें इस्लाह कैसे कैसे हो जाती है। तो लगे हाथों में मशवरा दे देता हूँ, अमीर अहले सुन्नत की किताब फैज़ान नमाज जो नई किताब आई है तो ख़रीद भी सकते हैं, 405 रुपये इसका हदिया है। और चाहें तो ये फ्री में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसका PDF वर्जन। अगली कॉल दीजिए जी। नारवाल से आसिफ एक बात कर रहा हूँ। तो मैं एक अपने कजन को वीजा लेके दिया, तो उस वीजे का मैंने जिस बंदे से वीजा लिया उससे तय किया कि ये 2 लाख का है, और जो कजन है उसको मैंने कहा कि ये मैंने 3 लाख का लेके दिया है। तो कजन ने कहा कि वो एग्री हो गया। आया कि ये जो ऊपर वाला लाख है वो मेरे लिए हलाल है कि हराम है, मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ? नहीं, आपके लिए तो हलाल नहीं है। कोई कज़न ने आपको कोई ब्रोकर नहीं समझा होगा, कज़न ने आपको ये समझा होगा कि आप रिश्तेदार हैं और किसी से बात करेंगे और ले देंगे, तो ये तो इसका हुक्म है। लेकिन जो आपने वीज़ा लिया है उसका हुक्म क्या है, वो भी तो एक अलग सवाल है। ठीक, जो 2 लाख का लिया है उसका क्या हुक्म है? ठीक है, वो भी एक अलग सवाल है, प्रोसेस के तहत लिया है, ठीक है ना। वो भी आप उलमा से पूछिएगा कि उसका क्या मसला है, कि आपने तफसीलात नहीं बताई तो मुतय्यन नहीं है कि आपने नाजायज़ तरीके से ही लिया है, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं दे रहा। लेकिन उसको भी आप उलमा से पूछिएगा। ठीक है मुफ्ती साहब, अब जो बहुत सारे मुल्कों का जो वीज़ा है वो रिश्वत देकर ही मिलता है। ठीक है मुफ्ती साहब, इन्होंने जो अब मामला कह रहे हैं तो कह रहे हैं मैं क्या करूं, लेकिन साथ में ये कह रहे हैं वीज़ा लिया था, अगर ऐसा कर चुके हैं ये या पेमेंट का ड्यूरेशन चल रहा है तो अब कज़न है तो ये कहते हुए कि जी मैंने आपके साथ यूं कर दिया था तो 2 लाख का और मैंने आपको 3 लाख का दिया, तो अजीब सा लगेगा। तो कुछ अल्फाज ऐसे हो जाएं कि अगर ये चाहें कि वो लाख रुपए छोड़ दूं मैं और 2 लाख का ही दूं तो क्या कहकर छोड़ें? अभी 1 लाख रुपए दे दें और कहें कि वो 1 लाख रुपए वापस हो गए ना, ठीक है, 2 ही लाख का पड़ा है, यूं 2 लाख का पड़ा है, ठीक है जी, तो यूं कर लें। अल्लाह ने चाहा तो दीगर असबाब से जो आमदनी के और ज़राए बन जाएंगे, अल्लाह बरकत डाल देगा। अगली कॉल दीजिए जी। मुफ्ती साहब से मैंने ये सवाल पूछना है कि ये जो आड़ती हजरात जमींदारों को खाद और बीज वगैरह देते हैं 6 माह की या 1 साल के उधार पे, तो बिलफर्ज एक खाद का जो एक बोरी है वो नेट रेट में 1800 रुपए की है, वो आड़ती कहता है कि मैं इसको 2200 में 2300 में या 2000 में दूंगा, तो वो जो 300-400 इजाफी लेता है तो वो क्या सूद के जुमरे में नहीं आते वो पैसे? ये भी सवाल का एक रुख हमसे पूछा गया, दूसरा रुख नहीं पूछा गया जी। उधार में कोई चीज़ बेचना और महंगी बेचना तो जायज़ है, लेकिन सवाल ये है कि आड़ती का तो ये काम नहीं है दवा बेचना। दवा तो खाद जो इसका डिपो होता है या जो पेस्ट्री मार्केट के लोग होते हैं वो बेच रहे होते हैं। आड़ती क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? आड़ती अगर उधार में चीज़ महंगी बेच रहा है तो ठीक है, बेची जा सकती है, उसकी अपनी दुकान है या कहीं से लाके दे के बेचता है, अगर इतना ही मामला है, इतना ही मामला है तो। लेकिन इससे अगली बात ये है कि आड़ती फिर ये भी कहता है कि जो फसल है वो मुझे ही बेचनी है, फसल मुझे नहीं बेचोगे तो ये उधार नहीं मिलेगी। और इस मार्केट का उसूल गालिबन यही बना हुआ है, इस तरह का जो ट्रेंड है या चलन ज़्यादा है। तो ये अगला जो काम है वो नाजायज़ होगा, पहला काम जायज़ है, लेकिन अगर किसी और चीज़ को साथ मशरूत कर दिया जाए कि माल हमें बेचना जब फसल आएगी, तो अब ऐसी शर्त लगाना जायज़ नहीं है। उसका अगर मार्केट रेट पर ही खरीदे वो फिर भी नाजायज़ होगा। देखिए उधार का मार्केट रेट तो एक ही होता है, लेकिन होता ये है कि जो आम दुकान वाले हैं वो इसको जानते नहीं है, ठीक है, ये उसको उधार क्यों देंगे, सही, ये आड़ती इसको जानता है, अरसा दराज से काम है, ठीक, तो ये फिर उसको उधार बेचकर एक दूसरा फायदा लेना चाहता है। यानी उधार में खाद खरीदी है, अब आड़ती को पेमेंट करनी है तो पेमेंट के बजाय जो है वो माल से उसको कवर कर लेते हैं। पेमेंट तो करेगा, ठीक है, या माल से वापसी होगी जी, लेकिन शर्त ये होगी कि माल यहीं बेचना है, कहीं और नहीं बेच सकते। ठीक, कहीं और जाके माल बेचेगा, पैसे तो जब भी मिलेंगे ना। जी जी जी, तो इसकी इजाजत बाहर नहीं होगी। अगली कॉल दीजिए।
जी मोहम्मद जुहेब अत्तारी मरकजुल औलिया लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैंने किसी को ना सामान दिया था, एक दोस्त है मेरे, सेल करने के लिए मोबाइल। तो सेल करने के बाद उन्होंने पेमेंट मुझे देनी थी, लेकिन वो कहते भी रहेंगे मैं आपको पेमेंट दूंगा, लेकिन फिर जब सेल हो गए हैं फोन तो उन्होंने पेमेंट देने से ना इनकार कर दिया। बिल्कुल वो बिल्कुल बोल रहे हैं जी कि आपके कुछ पैसे मेरी तरफ बनते ही नहीं है, जबकि मैं उनको क्लियरली बता चुका हूँ कि भाई आप इस तरह ना करें, ये आपके पास मेरी अमानत थी तो आप पैसे वापस करें। लेकिन वो किसी सूरत भी पैसे देने पे तैयार नहीं हो रहे। मैं उनसे हल्फन भी पूछता हूँ कि आप कसम खा लें या हल्फ दे दें आपके आपने पैसे नहीं देने हैं, वो लेकिन वो इस पे भी तैयार नहीं है। तो मुझे से पूछना है कि इसका हल फिर क्या है, कैसे इस मसले को हल किया जाए। बहुत प्रॉब्लम है, 5.5 लाख रुपए हैं। तो आप प्लीज जरा इनसे मुफ्ती साहब से अर्ज है कि इसका हल बता दें कि फिर उनसे कैसे पेमेंट नहीं देंगे तो उनका कैसे उनसे इसको क्लियर किया जाए। जज़ाकल्लाह खैर। ज़ुहैब भाई हमें आपसे हमदर्दी भी और दुआ गो भी, अल्लाह आपका मसला हल करे। जी मुफ्ती साहब क्या इरशाद फरमाएंगे? देखिए हल इसका क्या है ये तो पहले सोचना चाहिए था। जब आप डील कर रहे थे तो डील करते वक्त कुरान पाक की एक आयत मुबारका है और तवील आयत मुबारका है, उसमें कर्ज का लेन देन करते वक्त ये बताया गया है कि उस पर गवाह कायम कर लिए जाएं। साथ साथ ये भी तरगीब दी गई है कि दस्तावेज़ात तैयार कर ली जाएं। तो आपने ये दोनों काम नहीं किए तो आप परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं। आइंदा के लिए सबक हासिल करें कि आइंदा अगर ऐसा करना हो तो कोई गवाह हो, कोई दस्तावेज़ात हो, कोई मुआहदा हो, कोई रिटर्न एग्रीमेंट हो, ताकि सामने वाला इनकार ना करे। बाज़ औक़ात सामने वाला दिल का बुरा नहीं होता, उसे याद ही नहीं आ रहा होता कि मैंने कोई डील की थी ऐसी। तो 5.5 लाख रुपए याद नहीं आ रहा। कारोबार के अंदर तो ये मामूल की बात है, रोज़ाना इस तरह कई डीलिंग हो जाती है तो याद ही ना आ रही हो। और मुमकिन है कि वो चीटर हो, जानबूझकर ऐसा कर रहा हो। तो अब जहाँ तक बात हलफ की है तो ये भी एक अलग मसला है कि हलफ कौन उठाएगा और कौन नहीं उठाएगा। तो फिलहाल तो ये है कि आप दावा कर रहे हैं, आप मुद्दई हुए, आपका ज़िम्मा जो है शहादत पेश करना है, शहादत नहीं होंगे तो सामने वाला हलफ उठाएगा कि मैंने ऐसी कोई डील नहीं हुई। तो हलफ से ये कि उसकी बात मान ली जाएगी। दुनिया में तो बड़ी ज़िम्मा हो जाएगा, लेकिन आखिरत के अंदर जो है वो काबिल मुआख़ज़ा होगा और जो हकीकत है उसके मुताबिक वो काबिल मुआख़ज़ा होगा। अगर उसने लिए होंगे तो हिसाब देना पड़ेगा, नहीं लिए होंगे तो कोई गिरफ्त नहीं है। मुझसे भी जो ऐसा दबा लेता है, मार्केट में चीज़ आम है, भूलने वाली बात अपनी जगह पर है, लेकिन ये भी देखने में आता है कि सोजा इनकार आम है। जी इनकार भी आम है। इनकार आम से मुराद ये है कि होते रहते हैं, इक्का दुक्का होंगे। असल में मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में इसका शायद रेशो मुख्तलिफ हो। बाज़ काम ऐसे होंगे जिसमें नहीं पाया जाता होगा, बाज़ कामों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे सुनार लाइन को लें तो इसमें बहुत ज़्यादा, ये देखने में बहुत ज़्यादा से मुराद यही है कि आए दिन सुनने में आते रहती हैं ऐसी बातें। तो ये जो इस तरीके से धोखा देने वाले या फरेब देने वाले या इस तरीके से किसी दूसरे का माल नाहक हासिल करने वाले जो अफराद हैं, इनको क्या नसीहत की जाए, इनको कैसे समझाया जाए, और माशरे में जो अगर ये चीज़ बढ़ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ रही है, तो इसको कैसे रोका जाए? देखिए, कमा तुदीनु तुदान, आप जैसा करेंगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। ठीक। तो इस तरह के लोगों के साथ भी ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं कि उनके साथ चीटिंग ही हो, बीमार पड़ सकते हैं, पैसा वहाँ पानी की तरह बह सकता है, किसी और मुसीबत में मुबतला हो सकते हैं। दुनिया के अंदर भी इसके सज़ाएँ हैं और आखिरत की सज़ा तो बहरहाल है ही है। तो खौफ खुदा दिल में होगा तब बुराई से बच पाएंगे। अगर दुनिया की लालच, हवस, तमा और बस जैसे भी आए इन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, ये तो कोई तहजीब नहीं है, तो बद तहजीबी है, ये तो जहालत का दौर दौरा हो गया, ऐसी बात है। तो इन्हें उसूलों का पाबंद होना पड़ेगा। मुफ्ती साहब ने जैसे इरशाद फरमाया, मुझको भी आप सबको भी इस पर गौर कर लेना चाहिए कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ शायद हम अपनी ज़बान चलाने की वजह से, चरब ज़बानी की वजह से या ज़बान का तेज़ होने की वजह से, दीगर वजूहात की बिना पर हम किसी का नाहक जो है, किसी का माल, किसी की दौलत, किसी की जायदाद, किसी का हक जो है वो तलफ कर दें या उस पर कब्ज़ा कर लें। लेकिन ये याद रखें मुफ्ती साहब ने जैसे फरमाया, आखिरत के दिन जो है वो जवाब देना होगा और फिर छूटना मुश्किल हो जाएगा। अगर अल्लाह ताला की गिरफ्त हो गई तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें दीनी अहकाम सीखने की भी तौफीक अता फरमाए, इन पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसान करे लोगों पे मुझे
ایسا بنا دے احسان